امریکہ کا ایران پر ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام اور حملے۔ تہران کی جوابی کارروائی۔ امریکہ نے ابنائے ہرمز کے قریب فوجی ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد ایران پر فضائی حملے کیے ہیں، جس پر ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران پر ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت پر میزائل حملے کیے گئے، جس پر ان کے دفاعی نظام فعال ہو گئے، جبکہ عمان میں ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اس دعوے کو امریکی اور اردنی حکام نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے عمان ساحل کے قریب اپاچی ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر یو ایس سے سینٹرل کمانڈ کی جانب سے کی گئی پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ حملے ایرانی جارحیت کا مناسب جواب ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ مجھے ابھی فوج نے اطلاع دی ہے کہ کل رات ایران نے ابنائے ہرمز کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گیا ہے، جس کا جواب دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر فوری مذاکرات ناگزیر، طاقت مسائل کا حل نہیں کہ ایس سی کشمیر سالیڈیٹری کونسل کے چیئرمین اور اوورسیز کشمیری جاوید راٹھور نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پاکستان کے قومی مفادات، عالمی تشخص اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی سوچ کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، جاری آپریشنز روکے جائیں، انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے اور تنازعات کو طاقت کی بجائے مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے۔ میڈیا، سیاسی قیادت اور تمام متعلقہ حلقوں سے بھی اپیل کی ہے کہ مفاہمت، قومی یکجہتی اور مسئلہ کشمیر کے وسیع تر تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہکوٹ سے۔ ہمارے سینئر رپورٹر زاہد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب بھارتی سکھ یاتریوں کی جوڑ میلہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے ننکانہ صاحب آمد۔ ننکانہ صاحب 512 یاتریوں کو خصوصی بسوں میں سیکیورٹی کے سخت حصار میں گردوارہ جنم استہان پہنچایا گیا۔ مہمان یاتریوں کی آمد پر ضلع پولیس اور ضلع انتظامیہ نے والہانہ استقبال کیا۔ ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران نے مہمان یاتریوں کو پھول پیش کیے اور ہار پہنائے۔ ننکانہ پولیس کے جوان مہمان یاتریوں کی خدمت اور مدد میں مصروف عمل رہے۔ پرتپاک استقبال پر بھارتی سکھ یاتریوں نے ضلع پولیس اور ضلع انتظامیہ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ حکومت پاکستان کو سلام، جنہوں نے ہماری سیکیورٹی اور بہترین سہولیات کے انتظامات کیے۔ ننکانہ صاحب میں ملنے والی عزت قابل فخر ہے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ گردواروں کی حفاظت اور جوڑ میلے کی تقریبات کو پرامن بنانا اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او ارسلان زاہد۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے زرعی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز کی وفد کی ملاقات۔ وفد میں کسان تنظیموں، ڈیری، لائیو اسٹاک، ویلیو ایڈڈ سیکٹر اور بیج بنانے والی کمپنیوں اور قومی اور ملٹی نیشنل اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ مالی سال 2026-2027 کے وفاقی بجٹ سے قبل اس ملاقات کا مقصد بجٹ کے حوالے سے زرعی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت تھی۔ شرکاء نے موجودہ علاقائی صورتحال میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں امن کی کوششوں کو سراہا۔ شرکاء نے حالیہ متعارف کروائی گئی سیڈ پالیسی اور زرعی اصلاحات کا خیر مقدم کیا اور اسے زرعی شعبے کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کے تعاون سے PARC کو زرعی تحقیق میں تیزی لانے کے لیے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ زرعی شعبے کی پائیدار ترقی اور زرعی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی ملک بھر سے ماہرین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور وفاقی اور صوبائی پالیسیوں اور ضوابط میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے۔
वजीर आजम का फी एकड़ पैदावार बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग हाइब्रिड बीजों के फ़रोग़, बागबानी की तरक्की, ज़राई मैकेनाइजेशन और वैल्यू एडिशन पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए सूबे बिलखसूस बलोचिस्तान जामिया मनसूबा पेश करें। आसिनो तश्कील शुदा काटन बोर्ड का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर आज़म का शुरा की जानब से डेयरी और लाइव स्टॉक के फ़रोग़ के लिए पेश की गई तजावीज़ का खैर मकदम। हुकूमत ज़राई शोबे की पायदार तरक्की, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के साथ मुशावरत और ताउन का सिलसिला जारी रखेगी। वफ़द को हुकूमत की जानब से ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फ़लाह व बहबूद के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ज़रख़ेज़ी स्कीम के तहत छोटे किसानों को बैंकों की जानब से 1 मिलियन रुपए तक की आसान शराइत पर कर्ज़े फराहम कर रहे हैं। किसानों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से रिस्क कवरेज स्कीम और क्रॉप लॉस इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। डेयरी और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए नेशनल एनिमल हेल्थ एक्ट और नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी की मसूदात तैयार के लिए गई हुई हैं। वफ़द की शुरा ने ज़राई शोबे से मुतालिक अपने मसाइल से आगाह किया और इनके हल के लिए तजावीज़ पेश की। वफ़द ने पाकिस्तान के ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा और हुकूमत को मुआशी तरक्की और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। वफ़द में शेख अरशद इकबाल मुल्तान प्रीमियम फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड, ज़ीशान बेग, महमूद नवाज शाह, अमाद मलिक, राना नसीम, एहसन मुस्तफ़ा बाजवा, जहांगीर तरीन, फ़ाहद पटेल, शहजाद अमीन, खिज़र आलम खान, आमना आसिफ बाजवा, ज़हूर हुसैन, उस्मान ज़हीर, अहमद कादर, आफाक टवाना, शौकत रसूल, खालिद खोखर शामिल हैं। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस लगारी, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना रेलवे बिलाल अज़हर केयानी, मुआवने ख़ुसूसी हारून अख्तर और मुतल्लिक़ा आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया कोआर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर शाहकोट से, जहां कॉलेज रोड नज़द अल्लाहवाला गार्डन 50 सिलेंडर चोरी कर लिए गए। थाना सिटी शाहकोट में मुकदमा दर्ज। राय के मुताबिक हमीद गैस एंड सिलेंडर के नाम से बनाई गई दुकान पर चोरी की वारदात नाम अलवी अफराद ने 40 अदद 12 किलो वाले सिलेंडर और 10 खाली सिलेंडर चोरी कर लिए। मोहम्मद अमीन जब सुबह सवेरे अपनी ही दुकान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं और 50 अदद सिलेंडर गायब हैं, जिनकी माली तकरीबन 5 लाख रुपए है। मोहम्मद अमीन की डीपीओ ननकाना से पुरजोर अपील है कि वारदात करने वाले मुलजिमों को जल्द से जल्द कानून की पकड़ से कड़ी सजा दिलवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि इस चीज का नोटिस लिया जाए और शाहकोट इंतजामिया को हिदायत की जाए कि मुलजिमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और शाहकोट सिटी SHO मुजरिमों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है और मुद्दई मोहम्मद अमीन अब्दुल हमीद का जो माली नुकसान हुआ है इसके साथ इंसाफ किया जाए और जो इनका नुकसान हुआ है इसको पूरा करने में इनकी मदद की जाए। आशीष जट, ब्यूरो चीफ MB न्यूज। दीना रेलवे रोड पर दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक की बिला रोक टोक आमदोरफ्त जारी, शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गई। रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम शदीद गर्मी में आवाम की परेशानियों और एम्बुलेंसों समेत जरूरी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। शहरियों ने DPO जेहलम और DSP ट्रैफिक से मुतालबा किया है कि दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद करके फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब भारतीय सिख यात्रियों की जोड़ मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए ननकाना साहब आमद। ननकाना साहब 512 यात्रियों को खुसूसी बसों में सिक्योरिटी के सख्त हिसार में गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। मेहमान यात्रियों की आमद पर जिले पुलिस और जिले इंतजामिया ने वालिहाना इस्तकबाल किया। DPO डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने मेहमान यात्रियों को फूल पेश किए और हार पहनाए। ननकाना पुलिस के जवान मेहमान यात्रियों की खिदमत और मदद में मसरूफ अमल रहे। पुरतपाक इस्तकबाल पर भारतीय सिख यात्रियों ने जिले पुलिस और जिले इंतजामिया का बेहद शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान को सलाम, जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी और बेहतरीन सहूलियात के इंतजाम किए। ननकाना साहब में मिलने वाली इज्जत काबिल फख्र है, कभी नहीं भूलेंगे। गुरुद्वारों की हिफाजत और जोड़ मेले की तकरीबात को पुरअमन बनाना अवलीन तरजीह है। DPO अरसलान जाहिद।
आशीष ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना एमएनए चौधरी फरक अल्ताफ ने राजा सुहेल महमूद कियानी की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जेहलम एमएनए हल्का एनए 61 जनाब चौधरी फरक अल्ताफ गुज़िश्ता दिनों हादसे में जख्मी होने वाले नंबरदार राजा सुहेल महमूद कियानी की अयादत के लिए जेहलम अस्पताल पहुंच गए, जहां राजा सुहेल महमूद कियानी जेरे इलाज हैं। इस मौके पर एमएनए हल्का एनए 61 चौधरी फरक अल्ताफ के हमरा इनके पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर फजल उल हक फजली साहब भी मौजूद थे। एमएनए हल्का एनए 61 चौधरी फरक अल्ताफ ने राजा सुहेल महमूद कियानी की खैरियत दरियाफ्त की, इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि राजा सुहेल महमूद कियानी एमएनए हल्का एनए 61 जनाब चौधरी फरक अल्ताफ साहब के दरीना साथी और हामी है। अयादत के मौके पर राजा सुहेल महमूद कियानी की भाई राजा बाबर कियानी और राजा सेफ कियानी भी मौजूद थे। आशीष ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज दीना एमएनए चौधरी फरक अल्ताफ ने राजा सुहेल महमूद कियानी की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जेहलम एमएनए हल्का एनए 61 जनाब चौधरी फरक अल्ताफ गुज़िश्ता दिनों हादसे में जख्मी होने वाले नंबरदार राजा सुहेल महमूद कियानी की अयादत के लिए जेहलम अस्पताल पहुंच गए, जहां राजा सुहेल महमूद कियानी जेरे इलाज हैं। इस मौके पर एमएनए हल्का एनए 61 चौधरी फरक अल्ताफ के हमरा इनके पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर फजल उल हक फजली साहब भी मौजूद थे। एमएनए हल्का एनए 61 चौधरी फरक अल्ताफ ने राजा सुहेल महमूद कियानी की खैरियत दरियाफ्त की, इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि राजा सुहेल महमूद कियानी एमएनए हल्का एनए 61 जनाब चौधरी फरक अल्ताफ साहब के दरीना साथी और हामी है। अयादत के मौके पर राजा सुहेल महमूद कियानी की भाई राजा बाबर साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि जो पंजाब जॉब सेंटर हुकूमत पंजाब का एक अवामी इक़दाम है, जिसका बुनियादी मकसद बेरोजगार अफराद को इनकी काबिलियत तालीम और तजर्बे के मुताबिक मुख्तलिफ सनती यूनिट्स, फैक्ट्रियों और दफातर में बाइज़्ज़त रोजगार फराहम करना है, ताकि सूबे में बेरोजगारी का खात्मा हो सके। इस अहम इक़दाम और हुकूमती विजन के मुताबिक एक अहम इजलास कमिश्नर साहिवाल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट डीओ इंडस्ट्रीज और डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि हुकूमत का अज़म है कि नौजवानों को इनकी सलाहियतों के मुताबिक बाइज़्ज़त रोजगार फराहम किया जाए। ये सेंटर रोजगार के मुतलाशी अफराद और इदारों के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, जिससे मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इन्होंने अफसरान को हिदायत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन और आगाही यकीनी बनाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहूलत से मुस्तफिद हो सकें। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से साहिवाल में कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के इनकम टैक्स बकाया जात केस में होंडा सिटी गाड़ी जब्त। आरटीओ साहिवाल ने साहिवाल में एक कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ इनकम टैक्स बकाया जात केस में कामयाब इन्फोर्समेंट कार्रवाई करते हुए होंडा सिटी गाड़ी जब्त कर ली। मुतलका टैक्स होंडा के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफा 161 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में 48 लाख रुपए का टैक्स डिमांड कायम किया गया। वाजिबुल अदा टैक्स की अदम अदायगी पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफा 338 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इन्फोर्समेंट कार्रवाई के दौरान टैक्स होंडा की मलकियत होंडा सिटी गाड़ी को जब्त करके सरकारी तहवील में ले लिया गया। चीफ कमिश्नर आरटीओ साहिवाल ने कामयाब कार्रवाई पर मुतल्लिका अफसरान और टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए इस अज़म का अदा किया कि टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रखी जाएंगी।